हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम हशिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधोमो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदरा। वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Panchajanya, the conchal named Panchajanya. Rishikesha, Rishikesh Krishna, the Lord who directs the senses of devotee. Devadatam, the conchal named Devadatta. Dhanamam Jaya, Dhananjaya, Arjuna, the winner of wealth. Pondram, the conch named Pondra. Dadamu Vilev. Mahasankham, the terrific conchal. Bhima Karma, one who perform Herculean task. Vrika Tudara, the voracious eater Bhima. Translation: Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his the Devdatta. The Bhima, the voracious eater, the performers of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra. Purport: Lord Krishna is referred to as Rishikesh in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalist cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity, and in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. He directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses Arjuna, and thus his particular name of Rishikesh, the Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudan because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cow and the senses. His name is Vasudev because he appeared as son of the Vasudev. His name is Devki Nandan because his name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastime to Yashoda at Vrindavan. His name is Parth Sarthi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjay in this verse because he he because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditure for different sacrifices. Similarly, Bhim is known as Brikkadora because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. So the particular type of conch shell blown by the different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the pleasure presence of Lord Krishna, the Supreme Director, nor that of the Goddess of Fortune. So they were precedented to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conch shell. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो भगवद गीता का जो चैप्टर 1 का वर्ष 15 है, इसमें जितने पांडव है जैसे अर्जुन है ना, भीम है, नकुल है, युधिष्ठिर महाराज है, सहदेव, ये सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। पहले युद्ध में है सबने अपने अपने शंख बजा दिए, अब इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो ये कुछ कुछ शंखों के नाम दे रखे हैं, जैसे भीम के शंख का क्या नाम दे रखा है, उनके शंख का नाम दे रखा है देखते थोड़ा तुम देखते जब भीम गए उनके शंख का नाम क्या है, पौंड्रक। भगवान कृष्ण उनके शंख का नाम है क्या है, उनका शंख का नाम है पंजन्या। और जो अर्जुन है उनके शंख का नाम है देवदत्त। तो इस तरीके से सबने अपने अपने शंख बजाए जरूर, है ना। शंख एक्चुअली क्यों बजाया जाता है युद्ध के अंदर, देखते हैं जैसे पहले के टाइम में अगर युद्ध हुआ करता था तो शंख जो है जीत का प्रतीक हुआ करता था कि हम विनेंगे, हम विनर टीम है, हम विजय होंगे। तो इसीलिए शंख, इसलिए हम देखते हैं अभी भी जब भगवान की पूजा भी करते हैं तो हम शंख बजाते हैं पहले, क्यों, क्योंकि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक राजा और उठ रहे हैं, तो उनके लिए भाई भगवान के लिए तो शंख बजाना होता है। जैसे हम देखते हैं आजकल
जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं पॉलिटिशियन, उनके लिए भी शंख बजा देते हैं आजकल। तो ये रीत कहाँ से चल आ रही है? भगवान से चलते आ रही है। उसके बाद ही पहले होता था। अब तो ज्यादातर लोग शंख नहीं बजाते, अब तो पता नहीं कुछ ढोलक डाय 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 चलता रहता है, वो सब चलता है, वो सब नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है ऋषिकेश। तो यहाँ भगवान कृष्ण को ऋषिकेश से संबोधित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ऋषिकेश का मतलब होता है वन हु हैज अ कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस ना। ऐसा व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, उस व्यक्ति को कहा जाता है ऋषिकेश। तो भगवान कृष्ण जो है उनका अपने सारे इंद्रियों पर नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि भगवान का अपना नियंत्रण नहीं है। इसलिए देखते हैं कि भगवान को पूर्ण वैरागी कहा गया है, पूर्ण रूप से पावरफुल है, ही इज ऑल परवेडिंग, नॉलेजेबल है, स्ट्रेंथ पूरी है उनमें, रेनिशिएट है पूरे रूप से, फुल्ली ब्यूटीफुल है, फुल्ली वेल्दी है। तो ये सारे गुण भगवान के अंदर आते हैं। तो इसलिए एक्चुअली कहा जा सकता है कि भगवान के बहुत सारे अनेकों नाम है। वो किस रूप में है? भगवान के अलग अलग कार्य, भगवान ने जो जो काम किया, जो जो दिव्य लीलाएं करते हैं भगवान, उन्हीं के नाम पे भगवान का नाम पड़ जाता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें भगवान विष्णु के हजारों नाम लिखे हुए हैं। तो वो विष्णु जी के अलग अलग उनके कोई ना कोई प्रसन्न अलग अलग पास्ट टाइम के ऊपर नाम उनका डिनोट किया गया। तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है। तो भगवान जैसे उदाहरण देंगे, जैसे भगवान जी है, जैसे भगवान ने मधुसूदन को मारा, भगवान का नाम मधुसूदन रख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने मधुसूदन नाम के राक्षस को मारा। भगवान का नाम हमने वासुदेव रख दिया क्योंकि वासुदेव जी के वो पुत्र हैं। भगवान का नाम यशोदा नंदन रख दिया। क्यों? क्योंकि वृंदावन में यशोदा मैया के साथ वो ओखल लीला हमने हम सब जानते हैं। यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था, फिर भगवान ने अपना पूरा अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाया था। तो यशोदा मैया के साथ उनके जितने भी दिव्य जो आदान प्रदान हो रखे हैं ना, ट्रांसडेंटल लविंग एक्सचेंज जो हो रखा है, पेरेंट रूप में, माता पिता के रूप में जैसा उन्होंने एक्सचेंज किया है वृंदावन में, तो भगवान ने उस चीज को किया गया। इसलिए भगवान को फिर यशोदा नंदन कहा जाता है। भगवान को गिरिधारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक कानी उंगली पे इंद्र जो शामक बादल जो छोड़े थे, जो प्रलय के टाइम पे इतने बड़े बड़े बादल की बूंदे गिरती है, एक ड्रॉपलेट्स गिरता है, बड़े बड़े होते हो। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठा लिया था कानी उंगली पे, इसलिए भगवान को गिरिधारी कहा जाता है। तो इसलिए और भगवान को राधा पार्थसारथी कहा जाता है। भगवान को पार्थसारथी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो इसलिए भगवान को अलग अलग जो भी पास्ट टाइम परफॉर्म करते हैं, जो जो करते हैं भगवान का, उनके अलग अलग एक्टिविटी के नाम पे उनका नाम रख दिया जाता है। ये भगवान की क्वालिटी है, ये भगवान की दिव्यता है। यहाँ से हमें ये चीज सीखने को मिलती है। और क्या हम सीख सकते हैं इससे? हम यहाँ सीखते हैं कि जहां जहां भगवान होंगे वहां वहां जीत होगी, जहां जहां माया होगी वहां वहां हार होगी। ये जरूर हो सकता है कि माया के कारण हमें लगता हो कि भाई वो मैं बहुत जीत रहा हूँ, बहुत मटेरियल आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, लेकिन लिटरली बात यही हो रही है कि हम उसमें दब के मर रहे हैं। जैसे कोकून का कीड़ा होता है ना, वो अपने आप को बिल्कुल मस्त कीड़ा है ना, जो एक अपने को पूरा उसमें बांधता है, उसको लगता है बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एट द एंड ऑफ लाइफ क्या होता है पता है? वो उसी कोकून का कीड़ा उसी अपने ही जाल में बंध के मर जाता है। ठीक इसी तरह भौतिक जो लोग होते हैं, कर्मी लोग, उनके साथ ये होता है। क्योंकि अपने काम करते उसी काम में, फैमिली में, परिवार से हमें लिपट के मर जाते हैं। हम ये नहीं कहते काम करना गलत है, हम कहते काम करो लेकिन फल भगवान को दो। और अगर फल भी नहीं दे सकते, कोई नहीं, अपने परिवार को ढंग से रखो, लेकिन भक्ति का जो एक साधन है तो वो कम से कम एटलीस्ट थोड़ा तो भगवान को एक फल तौर पर करना ही चाहिए लोगों को। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को प्रेम से दो, लेकिन पत्र दो, पुष्प दो, जल दो, पुष्प दो। भगवान कहते हैं कि मेरे को नमस्कार करो, पूजा कर दो, तो कुछ तो कर सकते हैं, एटलीस्ट दंडवत करें। आजकल लोग लेकिन ये भी नहीं करते। नमस्कार भी लोग ऐसे करते हैं जैसे फौजी में लोग सैल्यूट नहीं करते हैं, वैसे करते हैं। तो ऐसे आजकल लोग करने लगे। तो ये सब चीजें भी ठीक नहीं है। तो हम जो चीज करते हैं उसको हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ड्रेस कोड होता है स्कूल, मैडम टीचर गुड मॉर्निंग बोलता है। मंदिर जाते हैं धोती कुर्ता डाल के जाना चाहिए, कल्चर है हमारा। हाँ, बाकी दिन नहीं पहन रहे तो मंदिर के दिन, मंदिर जब जा रहे हैं उस दिन तो पहन के जाए कम से कम। उस दिन हरे कृष्णा बोले सबको। तो एक ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम हर जगह ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, लेकिन जब धार्मिक चीजों पे आएगी तो यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। ये तो आदत ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक से मुझे सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण जो है ऋषिकेश है, ऋषिकेश है ना। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को धनंजय शब्द से भी संबोधित किया है ना, देखते हैं इसमें। सो
Beginning with the lords were all encouraging in the fighting soldier. On the other side, there were no credits, no the presence of Lord Krishna, supreme director and dot of goddess of fortune. दूसरी साइड कौरव की सेना में देखते हैं ना भगवान है कुछ नहीं है, बस क्या है वहाँ जहाँ जहाँ भगवान होंगे वहाँ पे लक्ष्मी भी होगी, तो लक्ष्मी कौन है, भगवान की अर्धांगिनी है, वेयर वेयर कृष्णा देयर इज लक्ष्मी। ये सब चीजें देखनी चाहिए। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय।